Hello friends, welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IS Network. Today is day 13 and today we have taken again a portion from Indian economy, that is agriculture. So we'll be looking at what is the new topic we have with us with agriculture and what a possible question we can take on it, and we'll try to write a good and a comprehensive answer for that. So let's start. So if you talk about agriculture, two good quotes come to my mind whenever I talk about agriculture, and those two good quotes were given by Indians only. First was given by Naidu, that is Venkaiah Naidu. He told that agriculture is the only culture of India. So this was a good quote which I find fascinating. And the other one was given by Nehru, Jawaharlal Nehru, and he told that almost everything else can wait except agriculture. So these are two good quotes on agriculture which you can use in your essay, which you can use in your conclusions while writing your answers in agriculture. तो ये दोनों बहुत अच्छे quotes हैं, you can use them, and the importance and relevance of these quotes we can see more in times of COVID. कि किस तरीके से food security was more prominent issue during the times of COVID for India as well as the world. So let's start looking at what thing we are taking in agriculture today, that is livestock sector. अब लाइफ स्टॉक सेक्टर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ट्रस्ट मी, आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन एंड दैट विल कवर योर एंटायर पोर्शन ऑफ लाइफ स्टॉक इन पेपर 3 अंडर एग्रीकल्चर. ठीक है, तो लाइफ स्टॉक पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आज, उसके बाद मोटा मोटा लाइफ स्टॉक कंप्लीट हो जाता है. बट जो लाइफ स्टॉक के अंदर फर्दर सेगमेंटेशंस हैं, लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज़ हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, वो हम और डिस्कस कर सकते हैं आगे. बट लाइफ स्टॉक के लिए जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है, इसको हम रेडी कर लेते हैं आज. सो लेट्स स्टार्ट. अब द क्वेश्चन आई हैव टेकन इज़ that livestock sector in India can be an antidote. Antidote का मतलब क्या होता है? Remedy. Can be an antidote to achieve inclusive growth. ठीक है, that is livestock sector can help us in achieving the inclusive growth. However, but it faces severe challenges. There are severe pains and challenges in the livestock sector to realize its full potential. Discuss. So the question is of 15 marks. The question tag is discuss. The question tag, or we can say directive, that is discuss. In discuss we will be highlighting both the positives and the negatives of the question, and then we will be writing a balanced conclusion. So क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर है दैट कैन बी अ रेमेडी टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए लाइफ स्टॉक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ स्टॉक सेक्टर में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं विच इज़ नॉट मेकिंग इट टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल. तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन चैलेंजेस हैं और किस तरीके से एंटीडोट है इंक्लूसिव ग्रोथ का. बट उस पर जाने से पहले अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ इज़, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ऐसी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, किसी इकोनॉमी में ऐसा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जिसके बेनिफिट्स, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जिसके बेनिफिट्स कैन बी टेकन बाय एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज इंक्लूसिव ग्रोथ इन वेरी क्रूड सेंस. ठीक है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बट इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर इकोनॉमी के अंदर हर सेक्शन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स भी क्या हैं, सब सेक्शन को इक्वली मिल रहे हैं. सो दैट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ. तो हमें क्या है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर को प्रूव करना है पहले तो कि कैसे ये इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, एंड देन मेजॉरिटी ऑफ आवर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द चैलेंजेस द लाइफ स्टॉक सेक्टर इज़ फेसिंग. तो डिस्कस है, तो आई विल बी गिविंग द फर्स्ट पार्ट टिल दिस पॉइंट तक वी विल बी गिविंग अराउंड 30% ऑफ आवर वेटेज including the introduction, and challenges, since it is the major theme of the question, we will be giving it around 70% of our weightage. ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले इंट्रोडक्शन के साथ. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? वॉट भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो. वॉट फ्रॉम स्टैटिक एंड वाई फ्रॉम डायनामिक. तो थोड़ा मिक्स करके लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा वॉट से उठा सकते हैं और थोड़ा सा वाई से उठा सकते हैं. ठीक है, तो अगर वाई का हमें देखना है तो हमें पता है रिसेंटली कि जो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम है, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप फिलॉसफी है दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, बाय
2022। ठीक है, ऑल्दो कोविड के चक्कर में ये क्या डिले हो जाएगा, बट स्टिल दिस वाज द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो ये करंट से थीम उठा ली हमने। अब हम बता सकते हैं कि लाइफ स्टॉक सेक्टर, ठीक है, हैज़ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस, ठीक है, इन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाय 2022। ठीक है, तो किस तरीके से हमें पता है लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं हमें। इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सब्सिडरी इनकम, ठीक है, सब्सिडरी इनकम की तरह एक्ट करता है। वाई को हम किससे दिखाते हैं, इकोनॉमी के अंदर इनकम से। ठीक है, तो लाइफ स्टॉक सेक्टर कैन एक्ट एज सब्सिडरी इनकम फॉर द फार्मर्स और द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। देन इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, जनरेट करती है लाइफ स्टॉक सेक्टर। इन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, नॉन फार्म जॉब्स। ठीक है, देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फूड सिक्योरिटी, देन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर क्या है कि मोर प्रोटीन बेस्ड डाइट्स आर बीन एनकरेज, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिल जाती है। इसी के साथ साथ क्या है, देर इज़ ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ एनिमल्स यू आर हैविंग और पोजेसिंग इन अ रूरल सेटिंग, द मोर विल बी योर स्टेटस इन द सोसाइटी। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स बोथ सोशल, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, देयरफॉर इट कैन हेल्प to achieve the doubling of farmers income, or it can become a major part in achieving doubling of farmers income by 2022। ठीक है, और भी लिख सकते हो, लाइक अदर कल्चरल आस्पेक्ट्स भी होते हैं इसके बहुत बहुत। तो हम इसको इंट्रोडक्शन में हम 3-4 लाइन्स का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो आवर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर बेस्ड बोथ। अब हम बात करते हैं कि रोल इन इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये क्या है कि हम क्वेश्चन से ही क्या है हेडिंग उठा लेते हैं, दैट इज इट इज़ आस्किंग रोल इन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन था बाय एवरी सेक्शन सोसाइटी, इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी हम बात क्या कर सकते हैं इसमें, दैट कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट के लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है, इज़ मोर इक्विटेबल। ठीक है, ये ज़्यादा इक्विटेबल है एज़ कम्पेयर टू लैंड, एज़ कम्पेयर टू लैंड से। एग्जाम्पल क्या है, वी ऑल नो दैट इंडिया में क्या है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, हु हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है, ये कितने हैं हमारे पास, मोर देन 85% है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये तो पता लग रहा है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया के अंदर, इंडिया की सेटिंग के अंदर इज़ नॉट इक्विटेबल एट ऑल। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये जो भी क्या है कि लैंड लेस पीपल हैं, इसके अंदर जो लैंड लेस पीपल हैं एंड लेस लैंड पीपल हैं, माइंड इट, बोथ लैंड लेस एंड लैंड लेस लैंड पीपल, ठीक है, दे बोथ कैन टेक द एडवांटेज और बेनिफिट फ्रॉम लाइफ स्टॉक। ठीक है, स्पेशली क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल एक्टिविटी है, इंडिया में एग्रीकल्चर क्या सीजनल एक्टिविटी है, मॉनसूनल बेस्ड है। ठीक है, तो सीजनल एक्टिविटी तो क्या होता है, ड्यूरिंग लीन सीजन्स, जब एग्रीकल्चर क्या है कि प्राइम फोकस नहीं है या फिर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स प्राइम एक्टिविटी नहीं है, देन ड्यूरिंग लीन सीजन, ड्यूरिंग लीन सीजन, ठीक है, लाइफ स्टॉक कैन हेल्प एज अ सब्सिडरी इनकम सोर्स। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहा है किन की, जो ये सेक्शन है स्मॉल एंड मार्जिनल, जो कि क्या है कि ऑलरेडी जो मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या है कि अपना 100% नहीं दे पाता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द लाइफ स्टॉक। तो इंक्लूसिव आ गया। ठीक है, एवरी सेक्शन के अंदर स्मॉल और मार्जिनल भी आ गया यहाँ पे। तो हमें फोकस करना है, इंक्लूसिव उसने ऐसे ही नहीं दिया है। वी कांट जस्ट राइट द क्रूड पॉजिटिव्स ऑफ लाइफ स्टॉक, ऐसे पॉजिटिव्स नहीं दे देने, बट उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ वाले पॉजिटिव्स को हमें ज़्यादा फोकस में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें हम, तो जो भी क्या है स्मॉल एंड लो इनकम फार्मर्स हैं, ठीक है ना, इट विल हेल्प देम टू अचीव व्हाट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है। एट द सेम टाइम इट हेल्प देम टू अवेल लोन्स। ठीक है, जो भी मनी लेंडर्स होते हैं उनको हम एज अ कोलेट्रल हमारे एनिमल्स रख के और अवेल कर सकते हैं लोन्स को। एट द सेम टाइम इट विल मिटिगेट रिस्क, जो स्मॉल और लो इनकम फार्मर्स हैं इनकी ये रिस्क को मिटिगेट करता है क्या, लाइफ स्टॉक, कब, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ पुअर मानसून सीजन। एट द सेम टाइम व्हेन पीपल आर लिविंग इन मोर इन द रेन फेड एंड डिपेंडेंट मोर ऑन द रेन फेड एरियाज। ठीक है, तो ये हम क्या है कि इसमें लो एंड स्मॉल इनकम फार्मर्स को क्या है कि हेल्प कर सकते हैं। तो एक सेक्शन ऑफ क्या है
रूरल लैंडस्केप का हमने और इंक्लूड कर दिया उस इंक्लूसिव ग्रोथ में। एट द सेम टाइम ये देखा गया है कि यूजुअली क्या है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है कि मेन आर मोर प्रोमिनेंट, बट देखा क्या गया है कि मोर देन 3/4 ऑफ द लेबर डिमांड जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर, जो मोर देन 3/4 लेबर डिमांड है, दैट इज़ बीन फुलफिल्ड बाय वुमेंस ईजीली। ठीक है, लाइफ स्टॉक सेक्टर की 3/4 लेबर डिमांड क्या है कि वुमेन ईजिली क्या है कि फुलफिल कर सकती हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका जो शेयर है मोर देन 90% है इन लाइफ स्टॉक सेक्टर इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वुमेन का सेक्शन का पार्टिसिपेशन भी हो गया, तो अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो उस पर फोकस करना है इंक्लूसिव ग्रोथ वाले पे। यहाँ पर हम क्या है कि 30% हमारा कंप्लीट कर देंगे आंसर को। ठीक है, 15 मार्कर है ये, 15 मार्कर में हमें यूजुअली 3 पेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपके बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस के अंदर क्या है कि मेन थीम थी क्वेश्चन की, तो हम यहाँ पर 70% फोकस देंगे। अब जो मेन थीम है क्वेश्चन की दैट इज़ चैलेंजेस। तो चैलेंज में इसमें क्या है कि वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द इश्यूज़ विच आर प्लेगिंग द लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो उसमें पहला इशू क्या आता है कि लो लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। लो लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, अब ये कैसे हैं कि वी ऑल नो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, हमने इसको कंबाइन कर लेंगे बहुत सारे पॉइंट्स कि इंडिया है, इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या ज़्यादा होता है, एज रिजल्ट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है यहाँ पर प्रोमिनेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए जो भी लाइफ स्टॉक के अंदर कैटल है और जो भी हमारे साथ लाइफ स्टॉक के कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर क्या है कि प्रिवलेंस ऑफ डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं। एग्जांपल क्या हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक फुट एंड माउथ डिजीज़। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंजा आर बीन सीन इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी क्या आती है, लो आती है। एट द सेम टाइम इंडिया इज़ नॉट हैविंग हाई वेराइटी ऑफ कैटल्स विच आर ईल्डिंग मोर ईल्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लो ईल्ड वेराइटीज़ हैं। ठीक है, अब एग्जांपल अगर देखें हम तो जो कैटल्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडियन कैटल जो हैं दैट इज़ गिविंग ओनली अबाउट 50% ऑफ ग्लोबल एवरेज in terms of annual average milk yield। ठीक है, तो ये ग्लोबल एवरेज जस्ट 50% है क्या, एनुअल एवरेज मिल्क यील्ड बाय द कैटल्स ऑफ इंडियन। ठीक है, तो ओनली 50% है। ठीक है, तो ये हमने और देख लिया। और अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए व्हेन वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट्स ऑन क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, जब क्रॉस ब्रीडिंग के हमने प्रोजेक्ट्स चलाए, ठीक है, दैट इज़ जो इंडिजिनियस ब्रीड है उनको हम क्रॉस ब्रीड करवाएंगे किसके साथ, एक्जॉटिक ब्रीड के साथ। तो जो इसके आउटकम्स आए हैं दैट आर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। ठीक है, तो सक्सेसफुल नहीं आए हैं वो। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ इंसिमिनेशन। ठीक है, इंसिमिनेशन फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, इंसिमिनेशन फैसिलिटीज़ कम हैं। वी हैव लो क्वालिटी। ठीक है, जर्म प्लाज्म। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग पर्पसेस। ठीक है, देन वी हैव अगेन लेस टेक्निकल पावर, मैन पावर। ठीक है, वो भी कम है। तो दीज ऑल द पॉइंट्स एंड इश्यूज कैन बी कवर्ड इन लो लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि एक तो जो इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं उनकी ईल्ड जो है वो वैसे ही कम है। एट द सेम टाइम इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, तो डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं यहाँ पे। जो क्रॉस ब्रीडिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स चलाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनके जो आउटकम्स अच्छे नहीं हैं। देखा गया है कि जो नया जेनेटिक पोटेंशियल होता है वो बहुत वीक निकलता है, या फिर क्या है कि उसको डिजीज़ के कारण उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा रहती है, डेथ जल्दी हो जाती है। जो इंसिमिनेशन के हमारे पास सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बहुत कम है। लो क्वालिटी जर्म प्लाज्मा है, दैट इज़ द सीड। ठीक है, टू बी गिवन टू द मदर। ठीक है, देन एक्सेट्रम। जो हमने सेकंड पॉइंट लिया है दैट इज़ लैक ऑफ पॉलिसी एंड फाइनेंशियल अटेंशन। ठीक है, तो लैक ऑफ पॉलिसी एंड फाइनेंशियल अटेंशन में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक स्टैटिस्टिक्स है बहुत ही अच्छी, दैट इज़ कि ओनली अबाउट 12% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर।
ठीक है। जो एग्रीकल्चर पे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर पे हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है उसका सिर्फ 12% किसके लिए है, फॉर द लाइफ स्टॉक सेक्टर। ओनली 12% इज़ गिवन टू द लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो हम देख सकते हैं कितना कम एम्फेसिस है, जबकि एक बहुत मेजॉरिटी पोर्शन क्या है कि फॉर्म करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का। ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पर क्या इशू है, देर इज़ अंडर डेवलप्ड, ठीक है, देन देर इज़ इरेगुलर, देन देर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट मार्केट्स। जिस तरीके से हमारे पास APMC मंडीज़ हैं, ठीक है, APMC मंडीज़ हैं, उस तरीके का कोई फॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है, कोई रेगुलर मैकेनिज्म, फॉर्मल मैकेनिज्म अरेंजमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर। ठीक है। तो देयरफॉर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा क्या है, जो प्राइस डिस्कवरी होती है कमोडिटीज़ की, जो प्राइस डिस्कवरी होती है किसकी, एनिमल्स की, लाइफ स्टॉक की, वो बहुत क्या पुअर रहती है। ठीक है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट मार्केट्स, ठीक है, जैसा क्रॉप्स के अंदर APMC मंडीज़ हैं वैसा यहाँ पर इशू, या फिर वैसा यहाँ पर रेगुलर फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है। देन जो बाकी सारी हम इश्यूज़ पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए भी ट्रू होल्ड होंगी। एग्जांपल क्या होगी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ होगी। ठीक है। देन अदर एक्सटेंशन सर्विसेज जो भी होती हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो भी क्या है कि बहुत ही वीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर, क्योंकि ये है कि यहाँ पर फंडिंग कितनी आ रही है, ओनली 12%। ठीक है। तो ये सारे हमने क्या इशू देख लिए। एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि अगर आप क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो किसी कंट्री के साथ, ठीक है, तो क्या है कि हमारा जो इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस होती है, इंडियन के जो मार्केट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। एग्जांपल क्या है कि न्यूजीलैंड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक डेयरी मार्केट है, क्या है, इट कैन डिस्ट्रॉय, बिकॉज वी ऑल नो दैट न्यूजीलैंड इज़ अ पायनियर इन लाइफ स्टॉक, ठीक है, स्पेशली इन द डेयरी फार्मिंग। ठीक है। तो डेयरी की फार्मिंग के अगर हम वहाँ पर क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे और वहाँ से जो हमारे पास इंपोर्ट्स आएंगे, दैट कैन डिस्ट्रॉय द इंडिजिनस मार्केट्स। तो ये भी क्या है कि एक पॉलिसी फेलियर है। ठीक है। हमने RCEP में तो क्या है कि हमने विड्रॉ कर लिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, बट देन देयर आर सर्टेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद सर्टेन कंट्रीज विच कैन डिस्ट्रॉय आवर इंडिजिनस मार्केट्स। तो ये हमने गवर्नमेंट के साइड से क्या इशूज़ आ रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है। नाउ देर इज़ अ लो इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है। वी ऑल नो इंडिया में ह्यूमंस का ही इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है। लोग ही इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, तो फिर एनिमल्स का इंश्योरेंस तो भूल जाओ। ठीक है। तो फिर होता क्या है कि ड्यूरिंग मोर इंसिडेंट्स ऑफ डिजीजेस, या फिर कोई एपिडेमिक आता है ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है, मोर इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज़ होता है, तब क्या है कि उनका जो डेथ कवर है उस पर कुछ मिलता नहीं, तो क्या है कि ह्यूज लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए कोई स्टैटिस्टिक्स के कारण तो ओनली 6%, ठीक है, 6% जो एनिमल्स हैं आर इंश्योर्ड। ठीक है। ओनली 6% एनिमल्स क्या है कि इंडिया में इंश्योर्ड हैं। ठीक है। तो लो इंश्योरेंस कवरेज है, कवरेज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। बिकॉज डिजीज़ का इंसिडेंस क्या ज़्यादा है, बट हमने देखा क्या गया है कि जो एक कल्चर है इंश्योरेंस का वो कंट्री में है ही नहीं, स्पेशली फॉर ह्यूमंस। तो एनिमल्स के लिए तो क्या है वैसे भी कम होगा। ठीक है। अब जो बाकी सारे रीजंस हैं, आई हैव समड अप इन अदर इश्यूज़, तो यू कैन ऑल्सो राइट इन लाइक दिस ओनली एन एग्जाम बाय एरो मेकिंग। ठीक है। विच कैन बी डन इन आवर GS पेपर्स स्पेशली। तो हम इसमें बता सकते हैं कि क्या है, देर इज़ मोर कॉम्पिटिशन, ठीक है, टू फाइट फॉर रिसोर्सेज बिटवीन वॉट ह्यूमन्स एंड लाइफ स्टॉक, या एनिमल्स बोल सकते हैं इसमें। ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर भी क्या है कि कॉम्पिटिशन है किसका, रिसोर्सेज के लिए फाइट करने का, स्पेशली फूड रिसोर्सेज। ठीक है। इधर ह्यूमंस तो क्या है कि अपना एग्रीकल्चर फील्ड्स का एक्सपांशन कर रहे हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम ह्यूमंस क्या है कि अर्बनाइज लैंडस्केप का एक्सपांशन कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एंड देयरफॉर द लाइफ स्टॉक इज़ नॉट गेटिंग गुड क्वालिटी एंड ऑप्टिमम फॉडर। जो इसको खाने का फॉडर होता है वो इसको ऑप्टिमम नहीं मिल पाता, बिकॉज देर इज इटसेल्फ अ कॉम्पिटिशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक। तो हमने वो देख लिया। एट द सेम टाइम क्या है कि WTO की रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है, वी ऑफन कम अंडर द स्कैनर ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स।
ठीक है। तो इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या है कि बहुत बार क्या है कि एलिगेशंस लगाए जाते हैं दैट देयर इज़ वेरी वीक प्रोटोकॉल्स एंड रिजीम्स रिगार्डिंग द सैनिटरी या सैनिटेशन एंड हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स विच इज़ टेकन केयर इन इंडिया। बहुत गंदगी से काम होता है, ठीक है। इसको बहुत बार क्या है कि चाइना ने भी क्या हाईलाइट किया है, ठीक है। चाइना ऑल्सो हाईलाइटेड दिस कि इंडिया के वहाँ के इंडियंस की जो बफेलोस, ठीक है, बफेलोस इम्पोर्ट होती हैं कहाँ पे, चाइना के अंदर। मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है। और जो भी क्या है प्रोसेस्ड फूड मिलता है लाइफ स्टॉक का, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ उसमें हाइजीन और सैनिटेशन की जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। एट द सेम टाइम इसमें इशू क्या आता है कि बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूसेज ऑफ व्हाट, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है उनकी डिजीज़ को हटाने के लिए, बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, डिजीज़ का एक्चुअल रीज़न नहीं पता है कि एक्चुअल डोसेजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स उनको दे सकें। देयरफॉर क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनको एंटीबायोटिक्स खिलाया जाता है फॉर देयर ग्रोथ एज वेल एज़ फॉर क्योरिंग देम फ्रॉम एनी अदर डिजीज़। तो होता क्या है कि इससे दे डेवलप व्हाट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये डेवलप हो जाता है उसमें, ठीक है। और जब ये कहीं ट्रांसपोर्ट होंगी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा खतरा हो जाएगा किसका, सुपर बग्स का फैलने का, ठीक है। ये हो गया। देन जो हमने यहाँ बात करी, लैंड डिग्रेडेशन हो ही रहा है, उसका रीज़न हम देख लिया है, ठीक है। क्योंकि मोर प्रेशर ऑन लैंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो लैंड की क्या है कि डिग्रेडेशन हो रही, क्वालिटी सॉइल की क्वालिटी क्या है, डिग्रेड हो रही है। एट द सेम टाइम अर्बनाइजेशन क्या है कि उसको कॉन्क्रिटाइज लैंडस्केप में कन्वर्ट कर रहा है, तो फॉडर की क्वालिटी और फॉडर की रिक्वायरमेंट भी क्या है कि कम हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। एट द सेम टाइम लाइफ स्टॉक क्या है, लाइफ स्टॉक ऑल्सो फीड और ग्रेज ऑन फील्ड्स, तो यहाँ पर क्या है कि वेजिटेशन होना चाहिए, एंड दिस वेजिटेशन की अमाउंट विल डिपेंड अपॉन मानसून, ठीक है। एंड मानसून इज़ नाउ बीन चेंजिंग ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हमने पढ़ ही लिया। तो ये अदर इश्यूज़ को हम इसमें सम अप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने सारे चैलेंजेस उसके देख लिए। अब जब फाइनली हम कंक्लूजन लिखेंगे तो हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड, ठीक, गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्टेन स्टेप्स इन दीज डायरेक्शंस, लाइक क्या है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन ले रखी है, ठीक है। देन हमारे पास क्या कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है। देन अगेन वी हैव व्हाट, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं, बट दीज प्रोग्राम्स आर नॉट बीन प्रॉपरली फंडेड एंड प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है। इनकी फंडिंग्स क्या है, बहुत कम है, ठीक है। सो इट्स अर्जेंट टाइम टू इंक्रीज देयर फंडिंग एंड प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग द लाइफ स्टॉक सेक्टर टू अचीव द डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाय 2022, ये हम लिख सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम वी नीड टू कनेक्ट इट विद द लाइफ स्टॉक सेक्टर को किससे कनेक्ट करना चाहिए, ग्लोबल सप्लाई चेन से, ठीक है, ताकि हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी क्या है कि इंक्रीज़ होगी। देन अगेन मोर कमर्शलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन, जैसे अमूल का हमने क्या है कॉपरेटिव मॉडल स्टार्ट किया है फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वैसा ही क्या है कि हम और कॉर्पोरेट्स को क्या है, कॉपरेटिव्स को क्या है कि हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़ स्पेशली रिलेटेड टू द लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो ये क्या है कि दिस इज हाउ वी कैन राइट गुड आंसर फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। दीज आर द मेन इशूज़ विच आर देयर इन लाइफ स्टॉक सेक्टर। हमने देख लिया किस तरीके से क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को क्या है कि इंटैक्ट कर सकता है लाइफ स्टॉक सेक्टर, ठीक है। किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ के एजेंडा को क्या है कि इंक्रीज़ कर सकता है, किस तरीके से डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम को क्या है कि वो स्टेडफास्ट कर सकता है। तो हमने इश्यूज़ और चैलेंजेस दोनों डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्कशन, ठीक है। सो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, ये पेपर 3 के अंदर एग्रीकल्चर जो टॉपिक है उसके अंदर एक सेपरेट सब टॉपिक है, ठीक है। तो उससे जो एक बेसिक कोर क्वेश्चन बन सकता है, वी हैव टेकन दैट क्वेश्चन टुडे। जो कंटेंट इसमें मैंने दिया है इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ मेनी सोर्सेज, ठीक है। सो ट्राई टू गो थ्रू इट, ट्राई टू राइट अ मॉडल आंसर, ठीक है, और उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स एंड योर लाइफ स्टॉक सेक्टर विल बी कंप्लीटेड। अब क्या होता है कि जो भी एग्जाम के अंदर या फिर जो मैगजीन्स हैं एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की, उसमें जो भी लाइफ स्टॉक सेक्टर के बारे में अपडेट्स आती हैं, जैसे लाइफ स्टॉक सेंसस हो गया, जैसे लाइफ स्टॉक सेंसस के अंदर क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, एक्वाकल्चर प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो उसको क्या है कि हम
छोटे छोटे उसमें से केस स्टडीज़ निकाल सकते हैं, ताकि क्या एक क्वेश्चन अगर मान लो आता है कि व्हाट आर द मेजर्स बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द फिशरीज और द ब्लू रेवोल्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो उसमें हम बता सकते हैं कि कौन कौन से मेजर्स लिए, तो हम उसमें से जो भी हमने यहाँ पर मेजर्स की बात करी है या जो इश्यूज़ की बात करी वो हम यहाँ के वहाँ पर रख सकते हैं। और इन पॉइंट्स के अंदर हम जो एग्जाम्पल्स इकट्ठे करेंगे कहाँ से, न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर मैगजीन से, तो उनको उन पॉइंट्स के अंदर हम सब्सटेंशिएट करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लो हम क्या एफिशिएंट सीड क्वालिटीज़ इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फिशरी सेक्टर या एक्वाकल्चर सेक्टर, तो वहाँ से हमने क्या एक पॉइंट लिया और वहाँ से जो हमें डेटा या फैक्ट मिला कहाँ से, करंट अफेयर मैगजीन से, हमने उसको सब्सटेंशिएट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट गुड आंसर्स. Try to like the video and try to subscribe the channel and join the Telegram channel of IAS Network, and write in comment what are the topics you want us to complete and to take in the future sessions. So thank you and have a nice day.